all this while. All right, now this makes more sense for the problems of the 21st century. I think we need solutions of the 21st century, and hence the first panel discussion, which is to empower the future ready students, nurturing the 21st century skills in school education. I'd like to invite our moderator for the panel discussion. We have with us Mr. Deepak Thakur, an entrepreneur and a social worker. He's going to be the moderator. I would request all of you to please put your hands together for Mr. Deepak Thakur. Our panelists then gracing the podium, we have Tanushri Parekh, the chairman of GTTCI, Assistant Commandant, the Border Security Forces for New Delhi. Then we have our second panelist, Dr. Abhishek Pandey, the Director for Charles Walters Council for Innovation and Research, MOC Niti Aayog, Government of India. Can we have Dr. Abhishek Pandey please gracing the podium? Our next panelist is Smith Dashrath Lal, again a panelist, and he's the campus director for Sri Swami Narayan International School. Can we please also have you gracing the podium? This is our first panel discussion. Deepak sir, over to you. Ladies and gentlemen, this is a different role that has been given to me today. I used to be on the podium as a speaker. Very soon, on Wednesday, I'll be there with the Honorable Home Minister at Vigyan Bhavan, but that used to be as a moderator. No, not as a moderator, but as speaker. It's always been so. This is the first time I got this chance. Now, this is a difficult job assigned. Ladies and gentlemen, when you talk of education, I come from a state which once was the seat of education, where the ladies contributed to the Vedas. Gargi was from Bihar, Maitreyi was from Bihar, Gargi, Maitreyi, Aryabhatta, Chanakya, three universities. This was such an important state so far as education was considered. Now, the education system is in tatters there. What scares me then is the report of the Howard Kennedy School. Howard Kennedy School में कहा गया कि जहाँ population आपका 50% से ज़्यादा youth का होता है. Youth population, this was Henry Kudal, a social economist, he wrote, where the youth population is more than 50% of the total population. If there is not good education provided और उनको employment नहीं मिलेगा, तो there will be unrest, हिंसा होगी, हंगामा होगा, बवाल होगा, and they gave the example of what happened in Rohtak, the Jat Andolan. The chief minister was a Jat, still it happened, और administration कुछ नहीं कर पाता है. जब rebellion जैसी हालत हो जाती है, when the youth go in for an unrest kind of a situation, तो ऐसा नहीं हो, for why? For that, one of the major tools is education. And we have the best of the people here who gave a very good, and it will go on during the course of the day, the way they have contributed to the sector of education. But this is not happening in the Bimaru states, as we call it. Bihar, Madhya Pradesh, or a UP, or a Rajasthan. They provide the students. They provide the students through all these places, but the education standards are not going down. We have the best of the people from the arena of education and elsewhere also. Ladies and gentlemen, on our panel, we have Dr. Abhishek Pandey, Director, Charles Walters Council for Innovation and Research, Niti Aayog. Talking about Niti Aayog, when we have people like them, they are so full of knowledge, they are so well researched. I was there with Padma Bhushan, V.K. Saraswat ji. He is the technical advisor and also a member of the Niti Aayog. Recently, we were there in Vigyan Bhavan discussing green hydrogen. It was a seminar on renewable energy. And I would tell you, we have a lovely panel in the sense, very knowledgeable people. Next, we have Mr. Smith Patel. He is the campus director from Sri Swami Narayan International School. He's having come all the way from Gujarat. Ladies and gentlemen, let's have a big hand for him. They are doing a 700-bedded hospital also now. He told me in the morning.
Apart from the field of education, they are working in the field of health also. इसके बाद हमारे साथ हैं श्रीमती तनुश्री परीख. She is an assistant commandant with the BSF. अब एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने पूरे परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखा है. How can schools effectively promote global awareness among students? Crucial in this interconnected world. आज का विश्व जो है इंटरकनेक्टेड हो गया है. आपको मैं बात बता रहा हूं, यही मोदी जी के 2015 का हमने किया था बदलाव जो मैं देख रहा हूं. 2015 में हम लोगों ने किया एक दिनकर जयंती इसी विज्ञान भवन में, मोदी जी का हुआ, बहुत अच्छा हुआ. मैं उसके बाद गया बिहार. मैं तब तक पुरानी मोबाइल यूज करता था. Someone told me, अरे आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, आपका मोबाइल कहाँ है? I didn't have one. This was in a remote village of Bihar. I could see the youth is changing. They are adapting technology. Cut 2023, फिर दिनकर जयंती है. इस बार अमित शाह जी के साथ मैं आ रहा था बिहार में इसको कुछ प्रमोट करके. हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी वाला वो कह रहा है कि ये वो स्टार्टअप क्या होता है, व्हाट इज दिस स्टार्टअप? मैंने क्यों? अरे हमारे गांव का एक लड़का वो स्टार्टअप करते हुए उसने कंपनी बना दी. वो टाइल्स बेच रहा है. जो 40,000 कमाता था आज करीब 1 लाख कमा रहा है. तो सर आपको लगता है कि स्कूल्स जो हैं ये ग्लोबल अवेयरनेस प्रमोट कर सकते हैं? योर टेक ऑन दिस. Good afternoon, everyone. First of all, I just wanted to tell you I'm the youngest boy here sitting and just trying to connect you on this aspect. And I would like to quote something first of all, a few lines of a poem. ये देश हवा युवा मृदा पानी से बना है. ये देश पुरखों की कहानी से बना है और खून से हस्ताक्षर कर दे गगन पर. ये देश ऐसी पागल जवानी से बना है. ये युवा की पीढ़ियां, ये युवा का देश और युवा का उल्टा वायु जो अपना मार्ग स्वयं अपने आप बना लेती है, तटस्थ होती है, तो उसी युवा पीढ़ी से निकल करके मैं आज आपके सम्मुख I just wanted to tell you something on this education. As far as this education is concerned, to me, basically, so this education, what I believe, education is one which brings an overall development of an individual. What we are trying to do, we are manufacturing the scientists, we are manufacturing the engineers, we are manufacturing, the entrepreneurs. We are not manufacturing the good citizen. At the same time, I would like to replace the word manufacturing with nurture. Rather than manufacturing, the people, we have to nurture them at the same time. Then we are a global school, we are a good school. First of all, we need to be a good school. मैं ऐसे विद्यालय को कतई अच्छा विद्यालय नहीं मानता जहां पे कक्षा 10वीं में बच्चा जब फेल हो जाता है, उसके माँ बाप उसको घर से निकाल देते हैं. वो तपती दोपहरी में गेंद पर बल्ले को भाजने का अभ्यास करता है और उसको पूरी दुनिया सलाम करती है, कहती है भाई हमारे पास वी हैव द मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इन इंडिया. मैं ऐसे स्कूल को गुड स्कूल नहीं मानता, फेमस स्कूल नहीं मानता जो अपने बच्चों को नर्चर नहीं कर सकते. इफ यू आर born as a cricketer, if you are born as a dictator, if you are born as a ruler, if you are born in any particular domain, the first and foremost possible responsibility of a school is to nurture that individual brain in a different way. हम 50 को पढ़ाते हैं, 250 को पढ़ाते हैं. आईआईटी हम बैठाना चाहते हैं, भाई आईआईटी में निकलेगा. 100 की प्रतिशतता में बैठाने के चक्कर में हमने 80% युवाओं को बेरोजगार कर दिया. If you look at this education very closely, what we are doing actually, हम ये देखते हैं कि कक्षा 10वीं में आज 2010 में बच्चा है, आज 2023 में बच्चा है. आफ्टर 10 years, आफ्टर 15 years, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, जब वो अपनी मास्टर्स को लेकर के निकलता है, एमबीए लेके निकलता है, एमलिब लेके निकलता, एमफॉर्म लेके निकलता है, तो वो नौकरी ढूंढता है. बट ही इज नॉट एबल टू सस्टेन हिमसेल्फ इनटू द मार्केट बिकॉज ही इज नॉट प्रॉपरली नर्चर्ड at the same time in the school.
क्योंकि पहली जो गलती हम स्कूल वाले कर रहे हैं, पहला चीज तो ये, व्हाट आई हैव बीन डूइंग इन माय रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द नेम ऑफ चार्ल्स वॉल्टर्स काउंसिल फॉर इनोवेशन रिसर्च, आई एम आल्सो वर्किंग फॉर नीति आयोग एज अ मेंटर ऑफ चेंज. सो व्हाट आई रिकमेंड, देयर शुड बी अ प्रॉपर एग्जामिनेशन फॉर बीइंग अ टीचर, जो पूरे देश को शिक्षा दे रहा है, अमरत्व का ज्ञान दे रहा है, देश को बनाने का काम कर रहा है. वो बाई चांस हो रहा है, वो बाय डिफॉल्ट हो रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है. दिस इज अ मिसफॉर्च्यून फॉर आवर कंट्री दैट द टीचर्स आर नॉट द टीचर्स. सॉरी टू से, दे आर बाय चांस, दे आर बाय डिफॉल्ट, दे आर नॉट सो पैशनेट. हम ये कहते हैं भाई हमको तो 10,000 मिल रहा है, 12,000 मिलता है पर मंथ, 15,000 मिलता है. यू पीपल आर इवेल्युएटिंग योर क्वालिटीज, योर स्किल्स, योर स्टेमिना, योर कैलिबर, योर पोटेंशियल. यू पीपल आर द मेन रोल प्लेइंग इन द वर्ल्ड टू नर्चर द वर्ल्ड, टू नर्चर द क्रीम लेयर ऑफ द पॉपुलेशन, युवा. और आप अपने आप को पैसे से जज करते हैं. आपकी जो दीप्ति है, आपकी जो आभा है, आपकी जो प्रभा है, वो शिक्षक की होनी चाहिए, न कि एंटरप्रेन्योर की होनी चाहिए, न कि बिजनेसमैन की होनी चाहिए. तो मेरा ये ऐसा मानना है, जैसे हम आईएएस एग्जाम देते हैं, हमने नीति आयोग में प्रॉपर इसकी फाइलिंग प्रपोज कर रखी है, वैसे आईटीएस एक एग्जाम होना चाहिए. आईटीएस स्टैंड फॉर इंडियन टीचिंग सर्विसेज. अगर हम आईटीएस को प्रमोट करते हैं, आईटीएस को करिकुलम में लाते हैं, आईटीएस को यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में हम डिक्लेयर करते हैं, तो इंडियन टीचिंग सर्विसेज को पास करने वाले लोग, जिनकी स्टेमिना, जिनका कैलिबर, जिन्होंने जिया है एजुकेशन को, जो पैदा ही एजुकेशन बांटने के लिए हुए हैं, ऐसे लोग जब एजुकेशन में उतरेंगे, देन वी कैन हैव द रिवोल्यूशनरी चेंज दैट इज रिक्वायर्ड. तो वो बच्चे बेरोजगार नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे पास एक विजन होगा. वी वुड हैव अ मिशन एटलीस्ट टू नर्चर द वर्ल्ड. हम बात कर रहे हैं ऐसे युवा की जो पूरे देश की, पूरे कायनात को लेकर के चलने वाला, देश की दिशा दशा दोनों को परिवर्तित कर देने वाला है. आज हम बैठ करके यहां बात कर रहे हैं. और टीचर्स बेसिकली बुजुर्ग, आई एम नॉट अ क्रिटिसाइजिंग पर्सन, लेकिन मैं थोड़ी बहुत आलोचना लिखता हूं पेपर्स में, न्यूज पेपर्स में. एक आलोचक के रूप में मैं जो अपनी एक दर्शिता दिखाना चाहता हूं, आपको प्रेजेंट करना चाहता हूं, वो ये है कि युवाओं को आप आगे नहीं आने देना चाहते हैं. आप पंक्तिबद्ध खड़े हुए हैं, आपकी वो जमीन है, आपकी मिल्कियत है, आप खड़े हैं, युवा को नहीं आप आने देना चाहते. आई एम द सीनियर प्रिंसिपल. हाउ कैन यू बी अ प्रिंसिपल इन सच एन एज? व्हेन आई जॉइंड वेदांता इंटरनेशनल स्कूल, आपने वेदांतु का नाम सुना होगा, उसकी एक ब्रांच है वेदांता इंटरनेशनल स्कूल. एज अ प्रिंसिपल, ऑल स्टाफ्स हु आर एमएससी पीएचडी वर्किंग अंडर मी, एजेड थे, उनको बड़ा बुरा लगता था, भाई ये नया नया लौंडा आकर के मेरे को डिक्टेट करता है. आप जब तक ये पंक्तिबद्ध होने का जो नजरिया है, जो ये वामपंथी विचारधारा है, उससे बाहर नहीं आएंगे तो देश का विकास, कल्याण हो नहीं सकता है. हम एप्लीकेशन वैल्यूज में नहीं ध्यान देना चाहते, हम केवल टॉक शोज में ध्यान देते हैं. हम अपनी बातों को कहने में जितना विश्वास रखते हैं, जितना हम उसको अच्छे ढंग से परोसने में, मार्केट करने में अपनी बातों को विश्वास रखते हैं, अगर हम उन बातों को एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशनल, टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे खड़ा कर दें, तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ जरूर परिवर्तन होगा. अन्यथा इसमें परिवर्तन होने की कोई गुंजाइश, अकॉर्डिंग टू मी, इट इज नॉट सीन. थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर अभिषेक पांडे जी ने बहुत ही अच्छा संबोधन करके पूरे माहौल को जगमगा दिया. कहीं लोग बोर अगर हो रहे थे तो उसमें पूरी ये आ गई. It was absolutely electric. Ladies and gentlemen, now we have Mr. Smith Patel, as I told you, campus director, श्री स्वामीनारायण इंटरनेशनल स्कूल. जब हमने शुरू में पूछा भाई साहब से, चूंकि गुजरात कनेक्शन भी मेरा निकल गया, इनके साथ बड़ी आत्मीयता हो गई, कहीं आस ही पास रहते भी हैं, तो उन्होंने कहा हिंदी इंग्लिश मिक्स में बोलेंगे. सो आई कम टू मिस्टर स्मिथ पटेल. और इन्होंने एक बहुत अच्छा विषय रखना चाहा. इन्होंने कहा जो मेरे अनुभव हैं बच्चों को टीचिंग में, अभी इनसे पता चला मुझे कि आज जो बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, उसके कारण कोटा में उस स्प्रिंग का डंडा लगने लगा है. ये तो मैं जानता ही नहीं था. पंखे में इतने सुसाइड्स हो रहे हैं. सो बच्चे, दे आर अंडर सच प्रेशर दीज डेज, which is a big cause of concern to the parents. Ladies and gentlemen, we have Mr. Smith Patel to express his views. Check.
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू अक्षय सर कि यहाँ पे आपने मेरे को ये मौका दिया। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ आपको। डॉक्टर स्मिथ पटेल, कैंपस डायरेक्टर ऑफ श्री स्वामीनारायण विश्व मंगल गुरुकुल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। यहाँ पे सभी प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स, टीचर्स बैठे हैं। अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात की थी डॉक्टर साहब ने कि हम युवाओं को आगे नहीं लाना चाहते। उन्होंने एक स्कूल को गुड स्कूल कैसे वो उनके नज़रिए से देखते हैं और नहीं देखते, बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्कूल के ऊपर बात करता हूँ तो हम सब मानते हैं कि स्कूल से ही देश बनता है। एम आई राइट और रॉन्ग? कोई भी कंट्री हो, हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के अंदर सबसे बेस जो होता है वो मजबूत रखते हैं। और नॉट फॉर यू, मैंने देखा है, आपको नहीं बोल रहा हूं, जहां तक मैंने देखा है वहां तक हम क्या करते हैं कि प्री प्राइमरी के अंदर बैचलर्स में जो स्टडी करते हैं उनको ही टीचर्स लगा देते हैं। ये क्या हम सही कर रहे हैं? जो बेस है, बिल्डिंग का बेस ही मजबूत नहीं होगा तो आगे क्या होगा? पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगा सभी स्कूल ओनर्स को, प्रिंसिपल्स को, कि जब भी आप इंटरव्यू रखते हो, अपॉइंटमेंट किसी टीचर को अपॉइंट करते हो, तो प्री प्राइमरी लेवल पे आपको पीएचडी वाला मिल जाए तो उसको रख लो। वही उसको 12th और एमबीबीएस इंजीनियर तक ले जाएगा, डीप डाउन लेके उसको नॉलेज देगा। प्राइमरी में बैचलर्स जो स्टडी कर रहा है, मैंने देखा हुआ है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीएससी, बीकॉम, बीए में जो स्टडी करते हैं उनको हम क्या करते हैं, 5000 6000 उनकी नीड होती है, उतनी ही सैलरी पे करते हैं और उनको बोलते हैं कि तू मेरे प्री प्राइमरी बच्चों को पढ़ा ले। वो वही पढ़ाता है जो घिसी पिटी कहानी, जैसे अभी 21st सेंचुरी की बात करते हैं हम, तो पहले फ्लॉपी डिस्क थी, आज के बच्चे जो है वो स्मार्ट बन गए। अब तो विजिटिंग कार्ड भी वो एनएफसी वाला आ गया है। तो वो टीचर प्राइमरी में ही क्या एजुकेशन देता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसमें कोई नए आइडिया नहीं। स्टूडेंट, आपकी स्कूल में देखा होगा आपने कि जैसे प्री प्राइमरी वाले बच्चे हैं वो स्कूल में आते हैं बैग लगा के, जितना उसका वेट होता है उतना ही उसकी बैग का वेट होता है। जैसे आया वहां पे पढ़ा, सो गया, घर गया, कोई लेना देना नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, उसको कोई चीज नहीं सिखाई हमने, ना उसमें संस्कार दिए। प्राइमरी लेवल पे बेस्ड टीचर, जैसे सर ने एक बोला कि टीचर्स के लिए कुछ आईएएस जैसे आईटीएस बोला था, तो ऐसे मैंने बहुत ही स्कूलों में भी मार्क किया हुआ है कि प्राइमरी लेवल पे वो लोग जो टीचर्स रखते हैं वो मास्टर डिग्री वाले रखते हैं। और मैंने उनको एक दो बार पूछा भी था कि सर मास्टर डिग्री वाला है, बीएड किया हुआ है, एमएड किया हुआ है, और वो आपकी स्कूल में प्राइमरी में पढ़ा रहा है। तब उनका कहना ऐसा था कि सर मेरा प्राइमरी प्री प्राइमरी लेवल बेस्ड होगा तो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी ऑटोमेटिक बेस्ड हो जाएगा, मुझे वो बच्चों को पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो ऑनलाइन मोड से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन प्री प्राइमरी प्राइमरी वाले ऑनलाइन मोड से नहीं पढ़ सकते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, सर का एक पॉइंट था सुसाइड का। सर एक्चुअल में ये सुसाइड वाला है ना केस हम देखते हैं 95, 96, 97% अप वाले स्टूडेंट में। जिसके परसेंटेज 95 से अप है ना, उनमें ही सुसाइड वाला ख्याल आता है कि मेरा एक नंबर कम कैसे आ जाए। Ladies and gentlemen, this is a brilliant point. ये इतना बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, इस पर ध्यान दें हम लोग। सर जो 50, 60, 70% लाने वाले स्टूडेंट है ना, उसके माइंड में कभी सुसाइड का कभी ख्याल नहीं आता। जो भी IITian है, JEE नीट की प्रिपरेशन करते हैं, उन लोगों में एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है और उनके माइंड में सुसाइड का ख्याल आता है तो उसके जिम्मेदार हम टीचर्स हैं, उसके बाद उसके पेरेंट्स हैं। हम टीचर्स क्यों हैं? क्योंकि हमने उसको ये नहीं सिखाया। हम क्या मानते हैं सक्सेसफुल किसको बोलते हैं कि भाई आपका 6 मंथ का प्रोजेक्ट था, आपने 3 मंथ्स में सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया, उसको सक्सेसफुल बोलते हैं। महीने में 3, 4, 5, 6 लाख रुपए की जिसकी सैलरी होगी उसको सक्सेसफुल बोलते हैं। लेकिन सक्सेसफुल पर्सन मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है सर कि वो उसकी फेलियर सिचुएशन में क्या रिएक्ट करता है।
उसकी फेलियर सिचुएशन में वो कौन से पॉजिटिवनेस से रिएक्ट करता है, उसको हम सक्सेसफुल पीपल मानते हैं। तो ये चीज हम स्कूल्स के अंदर 9 से बच्चों को जब आते हैं अपनी स्कूलों में, तब उनको एक सेमिनार दे, उन लोगों में अवेयरनेस दे कि बेटा लाइफ एक ही बार मिलती है, यदि सुसाइड कर लिया तो वापस पढ़ना पड़ेगा क्लास फर्स्ट से। मेरे पास कोई आता है ऐसा ख्याल लेके कि नंबर कम आ गए, ये हो गए, मतलब बेटा जी ले, मर गया तो वापस पहली से स्टार्ट करना है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल से। पेरेंट्स को हम स्कूल में बुलाए, पेरेंट्स को ये सेमिनार दे, पेरेंट्स को बताए कि आप प्रेशराइज मत करो आपके बच्चे को। जब भी आप हायर स्टडी के लिए भेजते हो, JEE नीट की प्रिपरेशन के लिए सबसे हाईएस्ट रेशियो है JEE नीट में सुसाइड का, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा लड़का डॉक्टर बन जाए, और हर पेरेंट्स चाहता है मैथ्स हो तो कि मेरा लड़का IITian बन जाए। सारे डॉक्टर बनेंगे, पेशेंट कौन बचेगा? वही कुछ और विषय हैं, समय कम है, फिर आपके पास आऊंगा वापस। बहुत शिक्षा नीति अभी आ रही है जो मोदी जी ने इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें इट्स अ वेरी ऑल इंक्लूसिव ब्रॉड बेस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, वेयर द टीचर्स विल आल्सो बी असेस्ड। टीचरों को भी असेस किया जाएगा, शिक्षक और स्टूडेंट्स को नहीं असेस किया जाएगा। ये मेरे बच्चे कुछ देर से आए थे, ये लोग कहाँ से जान गए इस बात को कि उनका असेसमेंट उन्हें फेल नहीं किया जाएगा, तो बड़े निश्चिंत रहते कि फेल नहीं किया जाएगा। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी टू पुट लेस प्रेशर ऑन देम। यू नो, ये जो आ जाता है कि मैं फर्स्ट हुआ, मैं 0.5 से मेरा छूट गया, दिस फीलिंग पुट्स सो मच ऑफ प्रेशर ऑन दीज चिल्ड्रन। इसको हैंडल करने के लिए एज अ मदर, एज अ फैमिली पर्सन, एज अ गार्जियन, हमारे साथ श्रीमती तनुश्री परीख जी, इन्होंने कहा इस विषय पर बहुत अच्छा बोलेंगी, बहुत लंबा बोलेंगी। श्रीमती तनुश्री परीख जी, ये जो प्रेशर आज बच्चों पर आ रहा है, और आपको एक बात बोल दूं, ये अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक कोर्स है वैल्यू एडेड कोर्स। ये फिजिक्स के स्टूडेंट को भी पढ़ना है, केमिस्ट्री वाले को, मैथ्स वाले सभी को, इकोनॉमिक्स वाले सभी को। और उसमें टॉपिक क्या होगा? फिजिक्स वाले को पेपर प्रेजेंट करना होगा ऑन द आर्ट ऑफ वेल बीइंग, द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। ये ऐसी चीजें हैं जो अभी तक सिर्फ पढ़ाई हो रही थी, बट द फैक्ट दैट यू हैव टू बी हैप्पी ऑल्सो व्हाइल स्टडिंग, और नहीं तो फिर पंखा वाला केस हो जाता है। इसको रोकने के लिए इन सारी चीजों को लिखते हुए तनुश्री मैडम से मैं अनुरोध करूंगा कि अपने विचार व्यक्त करें। तनुश्री मैडम। Jai Hind. Good afternoon to everyone. I am Tanushri Parekh. I joined BSF as the first lady officer in combat role. I am not an educationist. I am not a critique. What I can tell you here is the life I have lived so far, 8 years in BSF. I think the very context I am speaking is the undercurrent of everything which you teach. No school teaches how to be first in anywhere, right? How can you be the first lady officer? कुछ स्कूल के बच्चे मेरे पास आते थे और बोलते थे मैम आप फर्स्ट लेडी ऑफिसर कैसे बन गए? I said I didn't know, right? This is a overall package. How, what is your, brought up, आपके parents, आपका घर. I don't, remember बहुत लंबे दोहे कविताएं, बट मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। और उस लाइफ एक्सपीरियंस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो रहा है वो टीचर्स का ही रहा है, और जिसकी वजह से आई स्टैंड वेयर आई एम। First teacher is my grandfather, my mother, and definitely my school teachers. And as sir has said, the primary and secondary, I still remember Agatha Christie ma'am. She was my chemistry teacher. So how important it is in a student's life, teachers ka role. And eventually, the kids like me can achieve anything. I'll tell you, when I got selected in BSF as the first lady officer in combat role, so I was in the academy, and even for academy, it was new to have a female. Academy has ever seen women as a lady wives,
as somebody's wife, somebody's daughter, but there was no female trainee. So out of all 1,000 people, I was standing, and trust me, it was not me. We were 67 officers who got selected from UPSC, and we were standing. It was not me who was feeling awkward, but rest of 65. How can you teach someone to not feel awkward where you have never been? So this is not in a curriculum. This is not. This cannot be taught anywhere. But ये आप सिखा सकते हैं उसकी overall development से. Overall, and when I talk about this, it is parenting, and schooling is the most important part of parenting. Because at my home, I was never judged as a girl. I was always treated as a kid. बहुत सारी सेमिनार्स में जब मैं जाती हूँ तो आई नेवर स्पीक अबाउट कैरियर, आई नेवर स्पीक अबाउट आप बच्चे को इतना पढ़ाएं. ऑलवेज सी एक बच्चे को सिर्फ बच्ची की तरह देखें, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू बीइंग मेंटर्स व्हेन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोल्ड. आजकल वो चला है कि बच्चे को डांटना नहीं है, वो बच्चे को बोलना नहीं है जितना. आई थिंक प्रेशर हैंडलिंग जो सर अभी बता रहे थे कि डिप्रेशन के थॉट्स, आई माइट बी वेरी रॉ इनटू इट. Judging shall not be the criteria, but every kid should be praised and rewarded when he or she is doing good. And if they are not doing well, they should be punished with something which, teach a lesson to them. So I still remember when people say कि you are a first lady officer and आपको थोड़ा awkward नहीं लगा training में. So this training, like I did not go to any training कि मैं वहाँ जाऊँगी तो I'll be the only woman how to be present, because आजकल हर चीज़ के मॉडल और कैप्सूल्स चलते हैं कि अगर आपको यहाँ जाना है तो आपको कैसा बिहेव करना है, आपको कैसे बैठना है. बट आई हैव नेवर अंडरगॉन सच कैप्सूल, बट इट वॉज माई लाइफ, इट वॉज हाउ आई हैव लिव्ड सो फार. वी आर टू सिस्टर्स. माई यंगर सिस्टर इज 7 years younger to me and she is in डॉक्टर एनेस्थीसिया में अपनी पीजी कर रही है. हमारे घर पे कभी हमें ये नहीं कहा गया कि तुम ये नहीं कर सकते बिकॉज यू आर गर्ल. या फिर जिस स्कूल में मैं पढ़ी वहाँ पे ये नहीं था कि सिंस शी इज़ अ गर्ल स्टूडेंट उसका टाइमिंग ये है, फिर उसका सर्टेन लेवल ऑफ वर्क और समथिंग. व्हाट आई वांट टू कन्वे इज ट्रीट योर स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट. देयर शैल नॉट बी कलर. एक जो हम रंगीन चश्मा पहनते हैं नीला और गुलाबी, कि व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग ए विमेन मैं वो गुलाबी चश्मा लगाऊंगी एंड आई विल डिसाइड कि इसको क्या बोलना है और इसको क्या होमवर्क देना है या फिर इसको किस किस गेम में. बिकॉज आई फील जब काउंसलिंग होती है या मेंटरिंग सेशन होते हैं तो इट विल बी सेड कि फॉर फीमेल डॉक्टर अच्छा है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, टीचिंग इज अ गुड जॉब, टीचिंग इज अ फीमेल जॉब, एंड इट इज बीइंग टैग्ड बिकॉज इट्स अ 9 to 5 जॉब. ये वो जॉब है जो आपके डेली लाइफ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में काउंटर नहीं कर सकती है, राइट? एंड देन व्हेन यू हैव आर्मी एंड व्हेन यू हैव आउटडोर वर्क, इट्स अ मैन जॉब. Who has decided it? So I was also asked this that, ma'am, will you continue your job once you'll get married? So I'm married, I have a kid, I'm continuing my job. See, what you do in your profession, what is your professional life shall not be, decided upon your gender. How can gender decide what you want to do in your life? ये एक particular thought एक सिर्फ टीचर और एक माँ बाप ही दे सकता है. When I say माँ बाप, तो in India we have every sort of society and बहुत बच्चे इतने नहीं हैं खुश नसीब कि उनके माँ बाप मतलब अच्छे से उन्होंने पढ़ाई की हो या फिर उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को समझे. बट हर माँ बाप ये ज़रूर चाहता है कि वो अपनी हैसियत से अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ाए. जो वो खुद नहीं दे सकता है वो उस बच्चे को दे उस पेरेंट के थ्रू. सो वहाँ टीचर्स का रोल और बड़ा हो जाता है जब पेरेंट्स वो सब इथॉस, इक्वालिटी और जो भी डेवलपमेंटल नीड्स वो बच्चे की समझते हैं वो खुद नहीं दे पाते. उनको लगता है कि हम इतने काबिल नहीं हैं तो हम बच्चे को दें, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स पे आती है. Ma'am, I'd like to interrupt here. Sure, You sure. spoke so well. And I think, being in the Central Paramilitary Forces, what we were talking about, quota and the stress on students, there is stress even on the forces, Central Paramilitary Forces, who spend days together on the borders or in stressful conditions. Had I known all this, had I met you earlier, I would have surely recommended you to Mr. Pankaj Singh. He's a friend of mine, earlier your DG. He's a man who feels a lot
for these things. I would have surely said, here you have someone who's an officer as well as social educator. Thank you, the panelists. It was a lovely discussion that we had today, and people are now looking towards the lunch table. So I'd like to announce we had a lovely discussion, all pervasive, all inclusive. Ladies and gentlemen, thank you so much for being here and listening to us patiently. Let's now break for lunch. Thank you all. Thank you, panelists. Thank you. Jafiz and our panelists as well, I'll request you all to please stay on the podium itself. To start with, our moderator, Mr. Deepak Thakur. Akshay, if you could please felicitate sir. Then our first panelist, Tanushree Parekh. Our next esteemed panelist, Dr. Abhishek Pandey. Followed by our third panelist, Smith Dashrath Lal Patel.